Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's session, we are going to start chapter number 5. And the name of this chapter is Adaptation in Plants. Okay, what is the meaning of adaptation? See, in this chapter, we are going to see different types of plant present throughout different part of the world. Okay, it means in this chapter we are going to see different type of forest. Okay, here we are going to see about the tropical forest, temperate forest, okay, rainforest, and what are tundra forest and what are taiga forest. Okay, so we all are going to discuss in this chapter. Okay, see, but before starting this chapter, you have to do one exercise. Okay, see, here this is a exercise is given. You have to write the names of any two plants. Means in this filling the blanks, you have to fill by writing any two names of plants which is near by you, okay, and which is of hilly region, and that live or grow in water, and that survive in deserts. Okay, so you all have to write the name of two plants on these areas. Okay, now come with me and start the chapter. See, my dear student, in this chapter we are going to see about adaptations. Okay, means adaptation का मतलब क्या है? हम लोग कहाँ रहते हैं? ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्दर्न पोर्शन में रहते हैं, ठीक है, हम सब नॉर्दर्न पोर्शन में इंडिया के रहते हैं. इट मीन्स वी आर अडेप्टेड टू समर एंड विंटर बोथ. ठीक है, तो उसी तरीके से जो ये प्लांट्स होते हैं ना, इनकी भी अडेप्टेशंस होती हैं. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडेप्टेशन इन प्लांट्स. सी, प्लांट्स हैव adaptations to help them survive in different areas. ठीक है, प्लांट्स आपको पता है, प्लांट्स बहुत गर्म वाली जगह पे भी प्रेजेंट है, तो बहुत ठंडी वाली जगह पे भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो उनका जो अडेप्टेशन का जो ये हैबिट है ना, इसी की वजह से वो ऐसी जगहों पे सर्वाइव कर पाते हैं. ओके, सो हियर यू आर गोइंग टू सी टू डिफरेंट टर्म्स, adaptations and habitat. Okay, now what is the meaning of adaptations? Let's have a look. Adaptations are special features that allow a plant or animal to live in a particular place. Okay, adaptation is a special feature which is present in any plant and any animal, and they allow them to live in a particular area. Okay, and now what is the meaning of habitat? The region in which a living organism lives and dwells is called habitat. Okay, so the area in which any living being lives is called as habitat. Okay, see, adaptation means it is a feature. Okay, adaptation is a feature present in any human being who allow them to adapt the nature of any area. Okay, and habitat means the area in which a person live. Okay, सो एडेप्टेशन का क्या मतलब है? एडेप्टेशन एक ऐसा स्पेशल फीचर है जो प्लांट और एनिमल दोनों में है, जो उनको अलाउ करता है किसी भी पर्टिकुलर जगह पे रहने के लिए. और हैबिटेट ऑन द अदर हैंड साइड, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उस एरिया को हम हैबिटेट कहते हैं. ठीक है, सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन एडेप्टेशन एंड हैबिटेट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ अब हम आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या आते हैं. देखिए, जो एडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स के लिए अलग होते हैं, एनिमल्स के लिए अलग होते हैं. ठीक है, अब ये सब डिपेंड करता है आपकी प्लेसेस पे. ठीक है, सी, the plants who used to grow in colder areas, okay, their adaptive habitat is different from the plants who survive in coastal areas. Okay, so देखो, for example, here example is given. You wouldn't see a cactus living in the Arctic. आप सब लोग जानते हो कैक्टस कहाँ पे उगता है. कैक्टस आपका डेजर्ट एरिया में उगता है. कभी आपने आर्कटिक रीजन में देखा है कैक्टस को उगते हुए? हैव यू सीन? नो, नेवर, बिकॉज कैक्टस, द स्ट्रक्चर ऑफ कैक्टस प्लांट इज habitually adapted in that a way that it can't survive in cold areas. Okay, ठीक है, चलो. ना ही आपने कभी ये देखा होगा ग्रासलैंड्स जो होते हैं, जो ग्रासलैंड जितने भी वहां पे बहुत लंबे लंबे ग्रास पेड़ पाए जाते हैं, ये भी आपने नहीं देखा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि सबका जो नेचर है सबका अलग अलग है. ठीक है, और सबका एरिया भी डिफरेंट डिफरेंट है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अडेप्टिव नेचर ऑफ plants in different area. So the first area which we are going to discuss in this chapter is the desert area. Okay,
डेजर्ट में किस तरीके से प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। आप सबको पता है जो डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट्स आर वेरी ड्राई, ओके, एंड वेरी हॉट, ओके। सो डेजर्ट एरिया में एवरेज रेनफॉल जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पे रेनफॉल ही पहली बात तो बहुत कम होती है डेजर्ट एरिया में, ठीक है। सो द डेजर्ट एरिया इज वेरी ड्राई एंड वेरी हॉट, and here the average rainfall is less than 10 inches per year, okay. So in desert area the average annual rainfall is less than 10 inches per year, okay. And see यहाँ पे क्या होता है, जो रेनफॉल है वो एक ही टाइम पे होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे महीनों चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सी एक टाइम पीरियड के लिए डेजर्ट एरिया में बारिश होती है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द ईयर है इट रिमेन्स हॉट एंड ड्राई, ओके। अच्छा, और यहाँ का जो डेजर्ट का सॉइल होता है, ठीक है, द डेजर्ट सॉइल आर सैंडी और रॉकी, ओके, द डेजर्ट सॉइल आर सैंडी एंड रॉकी इन नेचर, दैट्स व्हाई दे कांट होल्ड वाटर, ओके। See, the desert soils are sandy and rocky in nature, that's why they can't hold water properly, okay. And here the winds which blow in desert area, they are also very hot, they are also very dry, okay. Now what type of plants grow in desert area and what type of adaptive nature they have, let's have a look here my dear students. Here you can see some plants called succulents store water in their stems or leaf. डेजर्ट एरिया में आप सब जानते हो वेदर हमेशा ड्राई रहता है, ठीक है। यहाँ पे कभी बारिश बहुत कम टाइम के लिए होती है, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ड्राई रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम सैक्यूलेंट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम सैक्यूलेंट्स कहते हैं कंबाइंडली। और ये सैक्यूलेंट्स क्या करते हैं, ये सैक्यूलेंट्स वो प्लांट होते हैं जो वाटर को स्टोर करके रखते हैं स्टेम में या फिर लीव्स में, ठीक है। In desert area, a community of plant is found named as succulent. Those succulent plants can store water in their stem and as well as their leaf portion. Okay. Now, some plants have no leaf or some small seasonal leaves that only grow after it rains. Leafless plants conduct photosynthesis in their green stems. In previous chapter, we discussed about chlorophyll. Okay. Chlorophyll is the process through which photosynthesis process takes place in plants. Similarly, in desert area, maximum plants don't have photosynthesis, means don't have chlorophyll. Okay, अगर chlorophyll ही नहीं है तो फिर वो कैसे खाना पकाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो इनके स्टेम्स में होता है, ठीक है। देखो डेजर्ट एरिया में ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियां नहीं होती हैं या फिर बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेजर्ट एरिया में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो पत्तियों में नहीं होता है, वो कंडक्ट किया जाता है स्टेम्स में, ठीक है, पौधों के स्टेम्स में, ओके। नाउ लॉन्ग रूट सिस्टम स्प्रेड आउट वाइड और गो डीप इनटू द ग्राउंड टू ऑब्जर्व वाटर, ओके। So you can see my dear student, the plants in desert area, they have a very long root, okay, they have a very long root which go wide, very wide underground, and they can store water, okay. Here you can see the picture of cactus very clearly. This is the picture of combined picture of cactus and this is a whole picture of cactus plant, okay. See, some plants have a short life cycle, germinating in response to rain, growing, flowering and drying. See, the plants which usually used to grow in desert area, they have a very short life cycle, okay. And here the leaf, see, leaf here help shade the plant. See, डेजर्ट एरिया में बहुत से ऐसे लीव्स होते हैं जिनमें हेयर्स होते हैं, आप देख सकते हो कैक्टस में ये सब देख रहे हो, ये सब क्या, ये हेयर्स है, इन्हीं में पानी स्टोर किया जाता है इन प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ओके अच्छा, अब जब ये जो होते हैं ना, जो ये वाले पोर्शन जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, ये बहुत चुभते हैं, ठीक है, ये चुभते हैं नेचर में, इसीलिए इनको कोई खाता नहीं है। तो जब इनको कोई जानवर खाएगा ही नहीं तो इट मीन्स क्या, वाटर लॉस होगा ही नहीं, वाटर स्टोर का स्टोर रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कैक्टस में क्या होता है, कैक्टस के पास कोई भी स्टेम नहीं होता है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये देखो कैक्टस के पास कोई भी स्टेम नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, इन्हीं सब में, ये देख रहे हो, इन्हीं सब में वाटर स्टोर रहता है, इनमें तो कोई स्टेम ही नहीं होता है, तो ये जो इनके ये बड़े बड़े जो पोर्स निकले हुए हैं ना, इन्हीं में वाटर स्टोर रहता है, ठीक है।
अच्छा, और कैक्टस का कलर किस टाइप का होता है? आप देख सकते हो ये लाइट कलर्ड के इसके हेयर्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये देखो, ये जो कलर है ना ये इसका, ये व्हाइट कलर में होता है, ये बहुत ही लाइट कलर में होंगे, ठीक है। इससे क्या पता चलता है ये क्यों ऐसे होते हैं? ये इसलिए ऐसे होते हैं ताकि ये प्लांट्स को शेड अपना दे सके, ठीक है। चलो, तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने डेजर्ट एरिया के हैबिटेट के बारे में देखा, वहां के प्लांट्स के बारे में देखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट एरिया। सी, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में 4 तरीके के मौसम होते हैं। इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट एरिया वी कैन यूजुअली सी 4 seasons, and those seasons are your spring season, summer season, autumn season and winter season. Okay, so in temperate deciduous forest we can see 4 different type of seasons: summer, winter, spring and autumn. Okay, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है और ठंडियों में जो टेम्परेचर होता है फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे रेनफॉल अच्छे खासे अमाउंट में होता है। ओके, सो द रेनफॉल अमाउंट इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज 30 to 50 inch per year, and in comparison of desert area less than 10 inches per year. Okay, in temperate deciduous we can see there are 30 to 50 inches per year rainfall. Okay, अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेट डेसिडुअस में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। Here you can see this is the picture of a temperate deciduous forest, and you can find the layers of the forest. See, this is one layer, this is second layer, this is third, this is fourth. Here you can see the forests are divided into different layers. Okay, here forest is divided into layers. Okay, my dear student. Now, and all these layers are dependent upon, means the layers of temperate deciduous forest is completely dependent upon the climate, the soil and the age of the particular forest. Okay, see, the tallest tree make up the forest canopy which can be 100 feet. यहीं पे कैनोपी ट्रीज फॉर्म होती है, जस्ट लाइक दिस ट्रीज। ओके, यहाँ पे ये फॉर्म होती है जिनकी हाइट आपकी 100 फीट तक भी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? कार्पेटिंग द फॉरेस्ट हर्मिट। ओके फाइन। अच्छा, आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये कारपेट की तरह आपको नहीं दिख रहा है कि कारपेट पूरा बिछा हुआ है? तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में हमें इस तरीके का फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पत्तियां जब गिरती हैं तो जितने भी पत्तियां गिर चुकी हैं, जो पेड़ पौधे सूख चुके हैं, वो क्या करते हैं? वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, सड़ जाते हैं, और वो सड़ने के बाद क्या होता है? सॉइल में जाके मिल जाते हैं, और तब इट विल अल्टीमेटली एक्ट एज द न्यूट्रिएंट ऑफ द टॉप सॉइल, ठीक है। तो देखो, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या है? In temperate deciduous forest, my dear students, we can usually see 4 type of seasons: summer season, winter season, spring season and autumn season. And here the rainfall is between 30 to 50 inches per year. Okay, and here we can see different layers of the forest is formed here. Okay, in temperate deciduous forest, canopy type type trees are also formed here. Okay, and all the fallen leaves, twigs and dried plants, they decompose and act as a nutrient. Okay, now we are going to see temperate deciduous forest plant adaptation. Okay, how here plants are adapted their respective surroundings. See, यहाँ पे क्या होता है? जो वाइल्ड फ्लावर्स होती हैं, ठीक है, ये फॉरेस्ट फ्लोर पे स्प्रिंग सीजन में उगती हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, जब स्प्रिंग सीजन आता है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, तो यहाँ पे जो वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं, मतलब जंगली फूल होते हैं, ये आपके जमीनों में आपका उगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं वो स्प्रिंग सीजन के टाइम पे जो जमीन होती है ना टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की, वहां पे उगना शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होता है? जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है, मतलब टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है ट्रीज का? ये आपके थिन होते हैं, ब्रॉड मतलब चौड़े होते हैं, ठीक है, मतलब पतले और चौड़े होते हैं। इनका वेट बहुत कम होता है, इनकी पत्तियों का जो वेट होता है ना, ये बहुत कम होता है, ठीक है। इसीलिए ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ज्यादा से ज्यादा और खाना अपना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ये तो गर्मियों के टाइम में है, मींस गर्मियों के टाइम पे जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, ये सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं पतली होती हैं, चौड़ी होती हैं और बहुत हल्की होती हैं वेट में, ठीक है। वहीं पे आपका जब वेदर कूल होने लगता है,
ठीक है, मतलब जब ठंडियां शुरू हो जाती हैं तो जो ब्रॉड लीव है ये पानी रिलीज करना स्टार्ट करता है, मतलब पानी इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, इससे ये होता है कि पत्तियां जो ठंडियों के टाइम पे वेट की वजह से गिर जाती है नीचे, मतलब अपने स्टेम से वो नीचे, ब्रांचेस से वो नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, और वो ऐसा क्यों करती हैं, ताकि स्प्रिंग सीजन जब आए तो नई पत्तियां वहां पे फिर से लग सके। ठीक है, तो देखो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है, जो गर्मियां होती हैं, गर्मियां में सनलाइट ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, जिससे वो अपना खाना अच्छे से बना सकती हैं। उसके बाद जैसे ही ठंडियां शुरू होती हैं तो पत्तियां पतझड़ के तौर पे गिर जाती हैं। अच्छा, और फिर तीसरा क्या फीचर है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का, कि इनकी जो ट्रीज होती हैं, ओके, द ट्रीज विच इज प्रेजेंट इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, देयर बार्क, ओके, दे हैव अ थिक बार्क, ओके, दे हैव अ थिक बार्क टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम द विंटर। ओके, अब फिर क्या होता है, ब्रॉड लीव्स है इनकी, इनकी ब्रॉड लीव्स बहुत ज्यादा अमाउंट में सनलाइट को कैप्चर करती हैं। ओके, एंड इन ऑटम सीजन डेसिडुअस ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स। ठीक है, अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा, ऑटम सीजन में ये क्या करते हैं, अपने लीव्स को ये गिरा देते हैं। ठीक है, और किस लिए गिराते हैं, ताकि वाटर लॉस इनका मिनिमाइज हो सके। सो हियर यू कैन सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर टेम्परेट deciduous forest. Here you can see once a leaf covered in snow, and here leaves are fallen from the tree. Okay, now the third type of plant adaptation which we are going to see is taiga. Okay, taiga, what is the meaning of taiga? Let's have a look. Taiga is also known as a boreal forest. Okay, means taiga slash boreal forest. Okay, the another name of taiga is your boreal forest. See, the taiga forest is dominated by conifers tree. So the trees which is available in much larger quantity in taiga region are conifer trees. Now what is the meaning of conifer trees? It means cone bearing plants, means the cone like shape. Is the hair trees are present, they are just like cone like shaped. Okay, they have a cone like shaped, and they are maximum evergreen in nature, means they are full of leaf throughout the year. Okay, see, the in taiga region we can see winters are very cold and summers are very warm. Okay, and the soil which is present in taiga region are acidic in nature and mineral poor. Okay, and it is covered with partially decomposed conifer needles. Okay, अच्छा, टाइगर रीजन का क्या मतलब है, टाइगर रीजन को हम बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रीज पाई जाती हैं वो कॉनिफर के शेप में है, मींस कोन लाइक शेप में होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है, मतलब थ्रू आउट द ईयर ये पत्तियों से लदी पड़ी रहती हैं। ठीक है, और टाइगर रीजन में ठंडियां बहुत ठंडी होती है, गर्मियां बहुत गर्म होती हैं। ठीक है, यहाँ का जो सॉइल होता है ना वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक और मिनरल पुअर है, मतलब मिनरल कंटेंट यहाँ पे बहुत खराब है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं टाइगा प्लांट का एडेप्टेशन नेचर क्या है। So the first nature is, as I already discussed with you, my dear students, here trees are evergreen, means full of leaves throughout the year. That's why plants can perform photosynthesis. Plants can perform photosynthesis activity when temperature rises, because when temperature rises, there is sunlight. Okay, here many trees have a needle like leaves. Okay, here conifer forests are present, that's why in conifer forest the shape of leaves are needle like. Okay, बहुत ही sharp pointed होती हैं ये। ठीक है, and now shed snow more easily. अच्छा, इनका जो ये निडल लाइक शेप है ना, इसका मतलब ही ये होता है कि जो स्नोफॉल भी जब होता है ना इस पे, तो ये बहुत इजीली स्नो को हटा देती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वैक्स कोटिंग होता है। अब वैक्स कोटिंग का मतलब नहीं कि वैक्स कवर्ड है, नहीं, एक तरीके से कहा जाता है ये नेचर का एक मिरेकल है। ठीक है, इवापोरेशन से बचने के लिए टाइगा रीजन में जो ट्रीज होती हैं इनके लीव्स के ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होती है, जिससे इवापोरेशन का प्रोसेस ज्यादा नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब है, वाटर ज्यादा लॉस नहीं होता है।
ठीक है। नीडल्स आर डार्क इन कलर अलाउइंग मोर सोलर हिट टू बी अब्सॉर्ब, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अभी बोला कि इनकी जो लीव्स होती है वो नीडल्स के शेप में होती हैं, तो नीडल्स के शेप में होने से ये होता है कि यहाँ पे जो सोलर एनर्जी अब्सॉर्ब होती है वो ज्यादा अब्सॉर्ब होती है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये देखो, यही है आपका टाइगा रीजन में। ओके, सो हियर यू कैन सी द थ्री पिक्चर्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ द प्लांट्स व्हिच यूजुअली ग्रो इन टाइगा रीजन। सो यू कैन सी दे आर सच अ पॉइंटेड टिप्स, सी ये इस तरीके की होती हैं, आप देख रहे हो। ओके, एंड देयर शेप्स आर हियर यू कैन सी। Now we are going to discuss the tropical rainforest. What is the meaning of tropical rainforest? Here we are going to see. The tropical rainforest का क्या मतलब है? Tropical rainforest बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। It is very hot in nature and the rainfall, okay, and the rainfall this type of forest receive is 80 to 180 inches per year. Okay, so the rainfall which they receive is 80 to 180 inches every year. Okay, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, that's why the name of this forest is tropical rainforest. इसीलिए यहाँ पे फ्लड का भी ऑल टाइम डेंजर बना रहता है। ओके, यहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी खत्म होते रहते हैं। अच्छा, फ्लड आएगा तो वो सॉइल के टॉप लेयर को ले जाएगा अपने साथ, इट मींस सॉइल लूज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है बहुत ज्यादा तेजी से होती है, जस्ट बिकॉज दे आर रिसीविंग इन अ प्लेंटी अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। अच्छा, यहाँ का जो सॉइल है ये बहुत ही खराब होता है, ठीक है। देखो, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेरी थिक एंड नॉट मच सनलाइट इज एबल टू पेनिट्रेट टू द फॉरेस्ट फ्लोर। अच्छा, मैंने ये क्यों बोला कि यहाँ पे सॉइल का क्वालिटी खराब है, क्योंकि बारिश तो बहुत हो रही है यहाँ पे, ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि whenever there is rainfall, whenever there is a heavy rainfall, okay, the problem of flood erosions, okay, and during flood the top layer of the soil which contained the most nutritious part, it is washed up with the flood, and here the sunlight can't penetrate, okay, due to continuous rainfall. Okay, that's why this type of forest don't receive much amount of sunlight. Okay, now what type of their adaptive nature is? Here you can see, यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगी बहुत ज्यादा अमाउंट में रहते हैं, ठीक है। इस फॉरेस्ट में बैक्टीरिया और फंगी बहुत ज्यादा अमाउंट में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम बारिश होती रहती है, ठीक है, तो इसीलिए इनका जो ग्रोथ है ना, ये बैक्टीरिया और फंगी रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। सम प्लांट्स क्लाइंब एंड ग्रो ऑन द अदर्स टू रीच द सनलाइट, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंबर्स भी बहुत पाए जाते हैं, एंड क्लाइंबर्स आर दोज प्लांट्स हु नीड द सपोर्ट ऑफ अनदर प्लांट टू क्लाइंब फॉर देयर ओन ग्रोथ। ओके, नाउ स्मूथ बार्क एंड स्मूथ और वैक्सी फ्लावर्स स्प्रेड द रन ऑफ द वाटर। ओके, प्लांट्स हैव अ शैलो रूट्स। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो, दे हैव अ शैलो रूट। ओके, आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी इनकी रूट्स हैं, तो ये सारे रूट्स पे पानी स्टोर रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ पानी स्टोर नहीं रहता, न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर रहते हैं जो टॉप लेयर है सॉइल की, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। द फर्स्ट थिंग विच वी डिस्कस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। सी, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? टेम्परेट रेन फॉरेस्ट का मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत ही कम सीजनल फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर का। मतलब विंटर्स क्या होते हैं? माइल्ड होते हैं, और समर भी कूल रहता है। इसका क्या मतलब है? देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में गर्मी में बहुत गर्मी, ठंडी में बहुत ठंडी। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में जो टेम्परेचर है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो एकदम नॉर्मल रहता है। जो यहाँ की ठंडियां होती हैं ये बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती है, इवन गर्मी का सीजन भी हल्का हल्का ठंडा ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट क्या है? बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश होती है, जस्ट लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे किस अमाउंट में बारिश होती है? इट रिसीव्स 80 to 152 इंचेस पर ईयर, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, और ये 80 to 152 इंचेस में बारिश होती है यहाँ पे। और यहाँ का अगेन जो सॉइल है वो बहुत ही खराब होता है न्यूट्रिएंट में, ठीक है। यहाँ पे लार्ज एवरग्रीन ट्रीज हैं जो कि 300 की फीट तक हाइट पे पाई जाती है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं आपको, और उनकी हाइट कितनी होती है? उनकी हाइट 300 फीट तक होती है,
ठीक है, तो आप देख सकते हो जो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा माइल्ड रहता है, मतलब विंटर्स आर माइल्ड एंड इवन समर सीजन्स आर आल्सो कूल इन नेचर. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल temperate rainforest receive, it is about 80 to 152 inches, and here the evergreen forest which grow up to 300 feet of height. Okay, now we are going to see the temperate rainforest plant adaptations. Okay, यहाँ पे किस टाइप का adaptation है, here you can see epiphytes, mosses and ferns grow on top of other plants to reach लाइट. अच्छा, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ना एक प्लांट के ऊपर एक दूसरा प्लांट ग्रो कर जाता है. ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये नीचे देखो कुछ और है, ऊपर कुछ और है, ये देखो ये नीचे कुछ और है, फिर ऊपर कुछ और है. तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में क्या होता है ना, जैसे मोजेस और फॉन्स हैं, यहाँ पे मोजेस और फॉन्स आपके क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर की लेयर पे ये ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं. इन प्लांट्स की हाइट 300 फीट तक होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी टेम्परेट ग्रासलैंड. अब ये टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होता है, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो घास के मैदान होते हैं बड़े बड़े, हम उनके बारे में भी बात करने वाले हैं. टेम्परेट ग्रासलैंड को हम पेरियारी भी कहते हैं या प्रायरी. ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड का एक और नाम है प्रायरी. और यहाँ पे जो सीजन होता है, समर बहुत हॉट होता है और जो ठंडियां होती हैं कोल्ड होती हैं. ठीक है, यहाँ पे बारिश का कोई भरोसा नहीं है. ठीक है, यहाँ पे बारिश का को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और यहाँ पे सूखा तो कॉमन चीज है. ठीक है, सो द एरिया वेयर टेम्परेट ग्रासलैंड इज फाउंड, रेनफॉल इज अनसर्टेन, दैट्स व्हाई द सिचुएशन ऑफ ड्रॉट ऑलवेज कॉमन हियर. ओके, the temperate grassland usually, or and if I talk about the amount of rainfall the temperate grassland area receive, it is 10 to 30 inches of precipitation per year. Means the temperate grassland area receive 10 to 30 inches of rainfall per year. And here the soil is very rich in organic material. Okay, here the soil of temperate grassland are very rich in organic material. That's why the area of temperate grassland is perfectly suitable for agriculture, and few original prairies survive today here. Okay, that's why the temperate grassland area is perfect for agriculture. Okay, so in short, temperate grassland are also called prairie. Okay, and here summers are warm and winters are cold, and here rainfalls are uncertain. That's why the situation of drought is very common here. The temperate grassland area receive 10 to 30 inches of rainfall per year. Okay, and that's why it is suitable for agriculture, because the soil is very fertile here. Okay, now we are going to see the plant adaptation of this area. Some some prairie trees have a very thick bark. Okay, and here the roots of grasses extended very deep in the ground. Okay, here the roots of the temperate grassland are extended very deep in the underground, because they want to absorb moisture. That's why the area of this grassland area is very fertile. Okay, now see, the pereari grasses have a narrow leaves. Okay, so here the leaves which is present, they are very narrow in nature. That's why they lose very less amount of water. Okay, see, the leaves which is present in temperate grassland, they are very narrow in shape. That's why they lose very less water. Okay, very less water. Now see, the grasses which grow, okay, the grasses of this area which grow from near to their base area, means not from the tip area. Okay, they are not permanently damaged, means they are not permanently damaged, and this damage is usually done by animals or fires. Okay, and here see, soft stems. See, this area are of grassland area, it means the stem of this grasslands are very weak. Okay, that's why they can easily bend when winds blow. Okay, so here you can see these are the examples of prairies or temperate grassland area. Okay, now my dear students, we are going to discuss about tundra type of vegetation. Okay, now what is the meaning of tundra? Tundra means cold throughout the year. Okay, tundra means cold throughout the year.
In tundra region, short cool summer and long severe winters. See, in tundra region, summers are very short, okay, and winters are very long and severe, okay. In tundra region, summers are very short and winters are very long and severe, okay. The tundra area also receive very less amount of precipitation, okay. The tundra area also receives very little amount of precipitation, like 4 to 10 inches per year, okay. 4 to 10 inches per year. Here you can see among all the area, tundra region receives much less rainfall, that is 4 to 10, okay. It means it receive, tundra area receive less rainfall or in comparison of desert area, because in desert area those areas receive 10 inches of rainfall, okay. See, here the water they receive always here the water they receive always is in the form of snow and ice. That's why here plants like moses, grasses and sages grow here dominantly, okay. Now we are going to see the tundra plant adaptation. In tundra, plants are very small and they are very less grow, okay. Means here plants are very small, and why plants are very small? They lack nutrients, okay. Now see, here the color of the plant are very dark in color, even some are red in color, okay. And why? Because they don't receive much amount of sunlight, and only sunlight gives green color to plants because chlorophyll, okay, due to chlorophyll, okay. Here the some plants are covered with hair, okay. In tundra region, some plants are covered with upper layer with hair, okay, which keep them warm, okay. And in tundra region, some plants grow in group, okay. Some plants grow in group because if they grow in group, they can protect each other from wind and cold, okay. See, some plants have dish like flowers, okay. Here you can see some some plants grow dish like flower shaped, okay. They focus more on solar heat, okay. Now, these plants grow in clump to help conserve heat. Here you can see, my dear student, some plants grow in clump. And what are those plants? Here you can see the sunflower, okay? sunflower आप देख रहे हो ग्रुप्स में हैं, और ये ग्रुप में क्यों उगते हैं? ताकि ये हीट को स्टोर करके रख सके, okay. So here you can see the flower growth in tundra region, okay. Now the aquatic plant adaptation. Now we are going to see, earlier we have seen the all type of adaptations on land area. Now we are going to see adaptation in aquatic, means in water area. So here you can see, my dear student, जो अंडर वाटर लीव्स होते हैं और जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी प्लांट अंडर वाटर में रहते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि जो ओशन करंट्स आते हैं ना, वो ओशन करंट्स के साथ वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। सी, इनके जो प्लांट्स होते हैं ना, दे हैव एयर स्पेसेस बिटवीन इन देयर स्टेम, ओके। सो द प्लांट्स व्हिच ग्रो इन एक्वेटिक, दे हैव अ air spaces in their stem, okay, through which they can hold the plant up in the water. See, submerged plant lack strong water transport in stem. See, many plants are submerged in water in aquatic area, so they have very so they lack, means they lack strong stems, okay. Instead, water nutrients and dissolved gases are absorbed through the leaves directly from the water. अच्छा, एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, बहुत से प्लांट्स ना पानी के अंदर डूबे रहते हैं, ठीक है। मतलब उनकी जो लीव्स होती है वो पानी के अंदर डूबी रहती है, उनके जो स्टेम होते हैं वो भी डूबे रहते हैं, ठीक है। कुछ की लीव्स बाहर होती हैं, तब वो सांस कैसे लेते हैं, ठीक है, तो वो सांस इन लीव्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल का एक्वेटिक प्लांट्स का क्या मतलब है? एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही उनकी फ्लेक्सिबल उनकी स्टेम होती है, क्योंकि जब ओशन करंट्स आते हैं या वाटर करंट्स आते हैं ना, वो उनके साथ मूव कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इन प्लांट्स में ना बहुत ही एयर स्पेस जो होता है ना, उनके स्टेम में होता है, लीव्स में नहीं होता है, ठीक है। ताकि वो स्टेम में रहेगा तभी तो ऊपर रह पाएंगे, वरना तो डूब जाएंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो नीचे रहते हैं, ठीक है, पानी के अंदर रहते हैं वो, ठीक
ठीक है। तो उनका क्या होता है, स्टेम तो पानी के अंदर रहता है पर लीफ वो बाहर रखते हैं, और लीफ में उनका बहुत सारा होल्स होता है जिसके थ्रू वो पानी या डायरेक्ट सनलाइट ले सकते हैं। या आप देख सकते हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर एक्वेटिक, this is the example of your aquatic plants. Okay, now my dear student, in aquatic plants we can also see roots and root hair reduced or absent. ठीक है, यहाँ पे root जो होता है या root hairs जो होता है ये absent होते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है, roots only needed for anchorage, not for absorption of nutrient and water. एक्वेटिक प्लांट्स में रूट्स जो होती हैं या जो रूट हेयर्स होती हैं एब्सेंट होती हैं एक तरीके से, ठीक है, पर प्रॉपरली एब्सेंट नहीं होती हैं। यहाँ पे रूट्स की जरूरत सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट को और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए होती हैं, ठीक है। और वहीं पे बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियां पानी में वो तैरती रहती हैं सनलाइट के एक्सपोजर के लिए, जैसे कि लोटस है, ठीक है। यू ऑल हैव सीन द लीव्स ऑफ लोटस फ्लावर, ओके। So the leaf of lotus flower continuously floating on the surface of the water because they want the exposure from sunlight. Okay. Now floating plant में chlorophyll क्या होता है, upper part में restricted होता है, ठीक है, ठीक है। जो आपका floating plants होते हैं उसे chlorophyll upper layer में restricted है, मतलब upper layer में वो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, some plants produce seeds that can float, okay. Some aquatic plants also can produce seeds and those produced seeds continuously floated on the surface of water. And last but not the least, in floating plants chlorophyll is restricted to the upper surface. Floating plants मतलब aquatic plant में जो कि floating plants है, जो कि तैरते रहते हैं, वहां पे chlorophyll ना upper surface में perform नहीं होता है, okay. So now my dear student, we are going to take a quick recap of this chapter, okay. See, plants have adaptation to help them survive in different regions. Cactus have spines rather than leaves and it stores water in its stem. Many trees have thick bark to protect against cold winters in temperate deciduous forest. The taiga is dominated by conifers, most of which are evergreen, okay. This is the most specific feature of taiga region. The tropical rainforest is very thick and not much sunlight is able to penetrate to the forest floor. The temperate rainforest features minimum seasonal fluctuation of temperature. Soft stems enables prairie grassland to bend in the wind. The tundra plants are less growing. Aquatic plants must be flexible to withstand the pressure of moving water. In floating plants, chlorophyll is restricted to the upper surface. So I hope, my dear student, you got a very good understanding of this chapter, okay. Now go thoroughly through this chapter and complete all the exercise based on this chapter. Now I am taking leave and going to meet with you all in my next session with a new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.